Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahmat Shah, and once again I am here with you, lecture of English for 10th class. This is the third lecture of the text book, and this is unit number 1 and page number 3. The title of the chapter is Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we have talked about the title and the importance of the title, how important the title is in a chapter. So, as usual, I have written the difficult words, the meanings, and which part of speech do these words belong to. I have written all these things on the board. So, before moving any further, you should pause the video and you should open page number 3 and you should start reading from the second paragraph on page number 3. We are going to read it together, and you have to underline the difficult words, and after underlining the difficult words you have to write the meanings. Only then these things, these sentences, this whole paragraph will make sense for you. So let's read it. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived his hard life till he died. Although the Muslims' treasury was at his disposal, the greater part of Arabian Peninsula was Muslim, and Muslims were victorious after 18 years of his mission. Despite his responsibilities as a Nabi, a teacher, a statesman, and a judge, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat, mend his clothes, repair his shoes, and help with the household work. He used to visit ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise. I hope you have underlined the difficult words of the paragraph, and now pause the video for a second and write the meaning of these difficult words. I hope you wrote the meaning of these words. So let's start translation of this paragraph and understanding this paragraph. तो यहाँ पर शुरू होता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम lived this hard life till he died. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत तक ये मुश्किल ज़िंदगी गुजारी. यहाँ पर हमारे पास ये वर्ड आया है जी lived, और ये आपको पता है live, lives, live, living. तो ये हमारे पास क्या है? verb, और ये verb mean reside, कहीं पर क़याम पजीर होना, अपना वक्त गुजारना, इसको हम बोलते हैं जी lived. और इसी तरह से हमारे पास अगला नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारे पास है although, और ये कंजंक्शन है, और इसका मतलब उर्दू में हमें जैसे कहते हैं अगरचे. Although the Muslim treasury was at his disposal. ट्रेजरी का मतलब हमारे पास होता है फाइनेंस, पैसे, माल और दौलत. ट्रेजरी और उर्दू में हम इसको बोलते हैं खजाना. ट्रेजरी और अगला वर्ड हमारे पास जो है वो जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, वो हम कहते हैं डिस्पोजल. डिस्पोजल का मतलब होता है अलॉटमेंट, जो किसी के हवाले आपने किया हो, और उसको उर्दू में हम कहते हैं किसी के सुपुर्द करना. तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं. Although the Muslims' treasury was at his disposal, अगरचे मुसलमानों का खजाना उनके सुपुर्द था. The greater part of the Arabian Peninsula. Greater part, अब देखिए हमारे पास एडजेक्टिव है, हमारे पास ग्रेट, और ये हमारे पास जो है एक ग्रेट हो गया, ग्रेटर हो गया, ग्रेटेस्ट. ग्रेट हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डिग्री आ गई, ग्रेटर कंपैरेटिव आ गई, और ग्रेटेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव आ गई. तो ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और ये हमारे पास एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है कि बड़ा. The greater part of the Muslim Arabian Peninsula. Peninsula is a part of land which will be surrounded by water. जजीरा नुमा. तो इस तरह से Arabian Peninsula का मतलब होता है जजीरा नुमा अरब. The great part of Arabian Peninsula was Muslim. जजीरा नुमा अरब का बड़ा हिस्सा मुसलमान था. And the Muslims were victorious after 18 years of his mission. और 18 साल, और उनके इस मकसद के 18 साल के बाद मुसलमान क्या थे? फातेह थे.
विक्टोरियस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें विक्टोरियस ये एडजेक्टिव है, ट्रायम्फ कहते हैं किसको, फातेह को, फतह करने को, ठीक है। वो क्या थे, मुसलमान वहाँ के फातेह थे, जितनी भी जंगें लड़ी वहाँ पर जो है वो उनको जीत नसीब हुई। तो आगे है कहाँ से था, विक्टोरियस आफ्टर 18 years ऑफ मिस मिशन, डिस्पाइट हमारे पास यहाँ पे देखें डिस्पाइट नहीं लिखा हुआ, ये डिस्पाइट लिखा हुआ है, ये हमारे पास ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके, डिस्पाइट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ नबी, यानी नबी होने की हैसियत से उनकी जिम्मेदारियां होने के बावजूद, अ टीचर एक उस्ताद, मुअल्लिम, अ स्टेट्समैन एक सियासतदान, एंड अ जज काजी को बोलते हैं, मुंसिफ को बोलते हैं, ठीक है, जो कि काजी भी थे, सियासतदान भी थे और उस्ताद भी थे, अगरचे कि वो एक नबी भी थे। यानी इसको अगर मुकम्मल तौर पर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि नबी होने के जिम्मेदारी होने के बावजूद वो एक अच्छे मुअल्लिम, वो एक सियासतदान और वो एक अच्छे मुंसिफ थे। नेक्स्ट हमारे पास शुरू होता है, नेक्स्ट लाइन शुरू होती है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मिल्क हिज गोट। यहाँ पर हमारे पास देखें स्टेटमेंट्स, हमारे पास सियासतदान हो गया, जज, काजी, मुंसिफ, टू मिल्क, टू वॉक, टू टॉक, तो ये हमारे पास टू के साथ जो है हमारे पास कोई वर्ब यूज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ये क्या है जी, इन्फिनेटिव, टू यूज किया जाता है और उसके बाद हमारे पास जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये हम इसको हम ग्रामर की ज़बान में हम इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। ही यूज टू, और यूज टू का मतलब ये होता है, ये हम जब यूज करते हैं यूज टू का मतलब है समथिंग दैट विच वॉज अ हैबिट ऑफ समवन इन द पास्ट, किसी की कोई जो है वो आदत थी माजी में जो कि अभी उसने जो है छोड़ दी है, मगर जो है वो जो माजी में जो काम कोई बंदा करता रहा हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मिल्क हिज गोट, वो अपनी बकरी को दूध धोया करते थे, दूध दोहना इसको बोलते हैं उर्दू में इसको, वो अपनी बकरी का दूध दोहते थे। मैंड हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े सिया करते थे, मैंड आपने जो है वो पोएम पढ़ी होगी, कॉबलर मैंड माई शूज, तो ये मैंडिंग से मतलब है सीने से है, ठीक है। ये इसका मतलब मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा भी हुआ है जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है, सर्व, और आगे हमारे पास जो वर्ड आ रहा है, ठीक है, हाउस होल्ड, रिपेयर हिज शूज, अपने जूतों की मरम्मत करते थे, एंड हेल्प विद द हाउस होल्ड वर्क, और घर के कामों में, घरेलू कामों में क्या करते थे, हाथ बटाया करते थे, जिसको हम आजकल जो है अपने लिए जो है वो बहुत बुरा तस्वर करते हैं, घर में काम करना, अगर मर्द घर में काम करता है तो उसको जो है बहुत बुरा माना जाता है, मगर ऐसा नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर में जो है अपनी घर में घर वालों की मदद करते थे और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो इसके साथ अगली बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत के बारे में बताया गया है, ही यूज्ड टू विजिट एलिंग पर्सन्स। क्या एलिंग का मतलब, ये देखिए हमारे पास एलिंग जो कि एडजेक्टिव है, एलिंग का मतलब होता है बीमार, सिक, ठीक है, ये सिक बीमार शख्स कोई, तो वो क्या करते थे, वो उनकी आदत थी, ही यूज्ड टू, जैसे मैंने भी आपको बताया ना क्या करते थे, उनकी आदत थी, ही यूज्ड टू विजिट एलिंग पर्सन्स, वो बीमारों की इयादत के लिए जाते थे, ठीक है, एंड एक्सॉर्टेड ऑल मुस्लिम्स टू डू लाइकवाइज, और एक्सॉर्टेड यहाँ पे देख लें, एक्सॉर्टेड जो है हमारे पास वर्ब है और इसका मतलब है अर्ज करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को तलकीन करना, ठीक है, और क्या करते थे, वो तमाम मुसलमानों को ऐसा करने की तलकीन करते थे। तो ये आज का हमारे पास ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने जितने भी ये नए वर्ड्स सीखे हैं, ठीक है, इनकी आपने जो है स्पेलिंग्स देखनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आपने देखनी है, उसके साथ फिर आपने उर्दू मीनिंग भी साथ सीखनी है, और ये सीखने के साथ साथ आपने करना ये है कि ये तो इन राइटर ने अपनी किताब में और इन सेंटेंसेस में यूज़ किया है, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने से इन वर्ड्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जब तक आप इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तब तक ये वर्ड्स आपके जो लिए सिर्फ रट्टा किसी काम के नहीं हैं। उसके साथ साथ अगर आप हम जो है आ जाएँ पेज नंबर 6 के ऊपर, और यहाँ पर हमने जो है कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, व्हाट इज मेंट बाय द सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, और
کل ہی جو ہم نے لیکچر دیا تھا اسی لیکچر میں آپ نے پیراگراف پڑھ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس وہاں پہ ہے. پھر دوسرا کوشچن تھا ڈسکرائب ان few sentences the lifestyle of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the light of the text that you have read. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے بارے میں لکھیں جو کہ ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ ہے. ادھر سے یا کسی اور حدیث سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ چیزیں جو کہ اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں اس کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور انکساری کے بارے میں لکھیں. اگلا سوال ہمارے پاس ہے ہاؤ کین سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی ڈو اوے ود دا کلچر آف ایکسٹراویگنس. ٹھیک ہے, ایکسٹراویگنس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو فضول خرچی کرتے ہیں تو کس طرح سے جو ہے سمپلسٹی جو ہے سادہ زندگی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ایکسٹراویگنس کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. ایکسٹراویگنس کا مطلب ہے جب فضول خرچی کرتے ہیں, فضول خرچی کے کلچر کو کس طرح سے ختم کرتا ہے. تو دیکھیں اگر آپ کو اس سوال کا جواب اس ٹیکسٹ میں جو کہ ہم نے آج پڑھا ہے اس میں ملتا ہے تو آپ اس کو لکھیں اور اس کو یاد کریں. اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے, کوشچن نمبر 3 کا آنسر تلاش کریں. ٹھیک ہے, ساتھ میں جتنے بھی ورڈز آپ کے پاس ہیں ان کو جو ہے آپ اپنے سینٹنسز میں یوز کریں. اللہ حافظ.